कंटेंट्स में इसमें इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशंस है, कंटीजेंसीज हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लॉसेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट गेन्स, determination of amount at which contingencies are included, event occurring after balance sheet date, disclosure, main principal contingencies, event occurring after balance sheet date and disclosure. सतीश सर एक फोन आ रहा है, एक बार आप Accounting Standard 4 Contingencies and events occurring after the balance sheet date. This accounting standard includes paragraphs set in bold, italic type and plain type which have equal authority. Paragraphs in bold, italic type indicate the main principles. This accounting standard should be read in the context. Which contingencies are included, event occurring after balance sheet date, disclosure, This accounting standard should be read in the context of the preface to the Statement of Accounting Standards and the applicability of accounting standards to various entities. See Appendix 1 to this compendium. This standard was originally issued in November 1982. The standard has been revised by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, by notification dated 30th March 2016, which is relevant for companies following Companies Accounting Standard Rules 2006 and which should be used for preparation of accounts for accounting periods commencing on or after the date of notification. The standard has been revised for entities other than companies in 2006 by the Council of the ICI and is mandatory for accounting periods commencing on or after April 1, 2017. Consequent to this revision, paragraphs 8.5 and 14 of Accounting Standard 4 stands amended. And all paragraphs of this standard that deal with the contingencies are applicable only to the extent not covered by other accounting standards prescribed by the central government. For example, the impairment of financial assets such as impairment of receivables, commonly known as provision for bad debt, doubtful debts, is governed by this standard. Achha. Attention is specifically drawn to paragraph 4.3 of the preface, according to which accounting standards are intended to apply only to items which are material. Introduction. This standard deals with the treatment in financial statements of contingencies and events occurring after the balance sheet date. तो ये जो accounting standard deal करता है contingencies के लिए और event occurring after the balance sheet date के लिए deal करता है. The following subjects which may result in contingencies are excluded from the scope of this standard in view of special considerations applicable to them. तो ये जो तीन contingencies नीचे दिए हैं इनको exclude किया गया क्योंकि इन तीनों situations में special considerations applicable है. A. Liabilities of life insurance, life assurance and general insurance enterprises arising from policies issued. जो लाइफ एश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस वाली एंटरप्राइज है उनकी जो लायबिलिटीज अपनी पॉलिसीज इशू करने की वजह से हैं उनके लिए ऑब्लिगेशंस अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स के ऑब्लिगेशंस के लिए एंड कमिटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. Definitions. The following terms are used in the standard with the meaning specified. A. Contingency is a condition or situation, the ultimate outcome of which, either gain or loss, will be known or determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. ऐसी कुछ future events, एक या एक से ज्यादा फ्यूचर इवेंट्स जो कि होंगी या नहीं होंगी या उनके होने या ना होने की वजह से जो एक्चुअल उसका जो आउटकम है लॉस हो या गेन हो वो तभी पता चलेगा जब वो होंगी या नहीं होंगी, लॉस होगा या नहीं होगा. तो वो कुछ कंडीशंस या सिचुएशंस जो कि फ्यूचर इवेंट्स के होने या ना होने से डिटरमाइन होंगी उनको कंटिजेंसी कहते हैं. इवेंट्स
occurring after the balance sheet date are those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved by the board of directors in the case of a company, and by the corresponding approving authority in the case of any other entity. ये साइन करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसी सिग्निफिकेंट इवेंट्स फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो जो कि बैलेंस शीट डेट और जिस दिन वो बैलेंस शीट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव की जाती हैं या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी में या किसी और अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा और किसी एंटिटीज के केस में. Two types of events can be identified: those which provide further evidence of conditions that existed at the balance sheet date, and those which are indicative of conditions that arose subsequent to the balance sheet date. जो दो टाइप की इवेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो इवेंट्स जो कि फर्दर एविडेंस प्रोवाइड करेंगी उन कंडीशंस का जो कि बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती थी, या ऐसी इवेंट्स जो इंडिकेट करती है ऐसी कंडीशंस जो कि सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट अरोज हुई. एक्सप्लेनेशंस. Contingencies. The term contingencies used in this standard is restricted to conditions or situations at the balance sheet date, the financial effect of which is to be determined by future events which may or may not occur. जो contingency यूज किया है स्टैंडर्ड में, ये जो टर्म यूज किया है वो सिर्फ और सिर्फ उन कंडीशंस या सिचुएशंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बैलेंस शीट डेट पर जिनका फाइनेंशियल इफेक्ट डिटरमाइन होगा फ्यूचर इवेंट्स, जो कि हो भी सकती हैं इवेंट्स या नहीं भी हो सकती. 4.2 estimates are required for determining the amounts to be stated in the financial statements for many ongoing and recurring activities of an enterprise. बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि ऑनगोइंग है, रिकरिंग एक्टिविटीज हैं हर एंटरप्राइज के केस में. उनके एस्टिमेट्स हम डिटरमाइन कर लेते हैं अमाउंट्स का, और वो एस्टिमेटेड वैल्यू पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंटर करते हैं. One must however distinguish between an event which is certain and one which is uncertain. तो डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है ऐसी इवेंट की जो कि सर्टेन है और जो कि अनसर्टेन है. The fact that an estimate is involved does not of itself create the type of uncertainty which characterizes a contingencies. वो फैक्ट की जो हम एक एस्टिमेट इन्वॉल्व है वो अपने आप में कोई क्रिएट नहीं करता है ऐसी सिचुएशन जो अनसर्टेनिटी हो जो कि कंटिंजेंसी को करेक्टराइज करे. फॉर एग्जांपल, द फैक्ट दैट एस्टिमेट्स ऑफ यूजफुल लाइफ आर यूज्ड टू डिटरमाइन डेप्रिसिएशन. जैसे कि जो डेप्रिसिएशन है वो यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट का एस्टिमेट है, उसको एस्टिमेट किया जाता है यूजफुल लाइफ को किसी एसेट का, और उसके हिसाब से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है. बट विच डज नॉट मेक डेप्रिसिएशन ए कंटिंजेंसी. तो ये डेप्रिसिएशन लेकिन उसको कंटिंजेंसी नहीं क्रिएट करता, उसको डेप्रिसिएशन को कंटिंजेंसी नहीं बनाता, हालांकि वो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बेस पर होता है. The eventual expiry of the useful life of the asset is not uncertain. तो जो यूजफुल लाइफ है उस एसेट की, उसकी जो इवेंचुअल एक्सपायरी है वो अनसर्टेन नहीं है. Also, amounts owed for services received are not contingencies as defined in paragraph 3.1, even though the amounts may have been estimated. जो 3.1 में वो जो तीन कंटिंजेंसी दी थी, ये वाली 3.2 में दी थी, तो 3.1 में एनीवेज तो पैराग्राफ
में कुछ अमाउंट्स एस्टिमेट की गई हैं। मैं पढ़ूं सर, आपका गला खराब है। आप पढ़ो। All amounts owed for services received are not contingencies as defined in paragraph 3.1, even though the amount may have been estimated, as there is nothing uncertain about the fact that these obligations have been incurred. कह रहे हैं जो भी अमाउंट, जो सर्विसेज आपने रिसीव कर ली हैं, उसकी वजह से आपको जो अमाउंट देने हैं वो कंटीजेंसी नहीं है, क्योंकि और जबकि आपको पता भी है, वो एस्टिमेटेड भी है कि भाई इतने अमाउंट आपको देने हैं, बट उसमें कोई कुछ अनसर्टेन नहीं है, कोई अनसर्टेन फैक्ट नहीं है उस ऑब्लिगेशन में जो कि हो चुका है, तो इसलिए वो कंटीजेंसी नहीं है। The uncertainty relating to future events can be expressed by a range of outcome. Uncertainty जो है वो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में है और जो कि एक रेंज ऑफ आउटकम है, बहुत सारे वजहों से वो होता है। दिस रेंज में बी प्रेजेंटेड एज क्वालिफाइड quantified probabilities, but in most circumstances this suggests a level of precision that is not supported by the available information. ये रेंज जो होती है वो बहुत सी प्रोबेबिलिटीज को क्वांटिफाई करने की वजह से होती है। कौन से पॉइंट पे है? 4.3। ओके। ये रेंज जो है वो बहुत प्रोबेबिलिटीज को क्वांटिफाई करने की वजह से प्रेजेंट होती है, बट काफी सारी सर्कमस्टांसेस में ये एक लेवल ऑफ प्रेसिशन है जो कि कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करती। The possible outcome can therefore usually be generally described except where reasonable quantification is practicable. और पॉसिबल आउटकम जो है हालांकि उसको जनरली डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि एक रीजनेबल क्वांटिफिकेशन जो है वो करना एक प्रैक्टिकल होता है। 4.4 The estimates of the outcome and of financial effects of the contingencies are determined by judgment of the management of the enterprise. तो उस आउटकम का जो एस्टिमेट होगा या उसका जो फाइनेंशियल इफेक्ट आएगा उस कंटीजेंसी का, वो जो है वो मैनेजमेंट के, जो एंटरप्राइज की जो मैनेजमेंट है उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है। दिस जजमेंट इज बेस्ड ऑन कंसिडरेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल up to the date on which the financial statements are approved and will include a review of events occurring after balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions and in some cases reports from independent expert. और ये जो जजमेंट है ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस दिन अप्रूव हो रही हैं उस दिन तक जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनको कंसीडर करके उसके बेस पे ये जजमेंट निकाला जाता है। और इसको में जो बैलेंस शीट डेट के बाद जो इवेंट्स अकर होते हैं उनका एक रिव्यू किया जाता है, और ऐसी ही ट्रांजैक्शन में जो पहले एक्सपीरियंस हो चुका होता है उससे इनको सपोर्ट किया जाता है, और कुछ केसेस में तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी ली जाती है। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लॉसेस। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए कंटीजेंट लॉस इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द कंटीजेंसी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कंटीजेंट लॉस का, वो जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा कंटीजेंसी का। If it is likely that a contingency will result in a loss to the enterprise, then it is prudent to provide that the loss in the financial statement. अगर आपको पता है कि कंटीजेंसी का जो कंटीजेंसी की वजह से एंटरप्राइज को लॉस होने वाला है, तो कहते हैं ये एक प्रूडेंट है
एक समझदारी है कि आप उस लॉस को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएं. The estimation of the amount of a contingent loss to be provided for in the financial statements may be based on the information referred to in the paragraph 4.4. वो कह रहे हैं जो एस्टिमेट है कंटीजेंस लॉस का उसको प्रोवाइड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो बेस्ड हो सकता है कौन सी इंफॉर्मेशन पे, जो कि अभी हमने 4.4 में बताई थी कि भाई या तो उसी तरह की सिमिलर इवेंट्स में क्या हुआ था या किसी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करके या जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करके. 5.3 if there is conflicting or insufficient evidence for estimating the amount of a contingent loss, then disclosure is made of the existence and the nature of the contingency. और वो कहते हैं कि अगर बाई चांस आपका कोई कन्फ्लिक्ट है या इनसफिशिएंट एविडेंस है आपके पास उस कंटीजेंट लॉस के अमाउंट को एस्टिमेट करने का, तो सिर्फ एक डिस्क्लोजर कि ये कंटीजेंट लॉस एग्जिस्ट करता है और इसकी नेचर क्या है, ये डिस्क्लोजर देना ही सफिशिएंट है. 5.4 a potential loss of an enterprise may be reduced or avoided because a contingent liability is matched at a related counter claim or claim against a third party. वो कह रहे पोटेंशियल लॉस जो है एंटरप्राइज का वो रिड्यूस किया जा सकता है या अवॉइड किया जा सकता है अगर कंटीजेंस लायबिलिटी जो है उसको मैच कर लिया जाए एक या तो काउंटर क्लेम के द्वारा या जो क्लेम अगेंस्ट द थर्ड पार्टी आपने किया है. In such cases, the amount of the provision is determined after taking into account the probable recovery under the claim if no significant uncertainty as to its measurability or collectability exists. वो कहते हैं इन केसेस में अमाउंट आप जो प्रोविजन करेंगे उसको डिटरमाइन कैसे किया जाएगा कि आप एक प्रोबेबल रिकवरी देखेंगे कि आपने जो क्लेम किया उसकी प्रोबेबल रिकवरी क्या है अगर कोई इन सब इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, अगर कोई सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी नहीं है उसको मेजर करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए. Suitable disclosure regarding the nature and gross amount of contingent liability is also made. और एक suitable disclosure उसकी नेचर का या ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी इस केस में क्या आ सकती है अगर आपके अगेंस्ट में कोई क्लेम है तो वो भी करना चाहिए. The existence and the amount of guarantees, obligations arising from discounting bill of exchange and similar obligation undertaken by an enterprise are generally disclosed in financial statements by way of note, even though the possibility that a loss to the enterprise will occur is remote. वो कह रहे हैं जो एग्जिस्टेंस है या जो अमाउंट ऑफ गारंटीज आपने दे रखी है ऑलरेडी उसमें जो ऑब्लिगेशन अराइज या ऑब्लिगेशन जो कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराने की वजह से हो रखा है या कोई और सिमिलर ऑब्लिगेशंस हैं जो एंटरप्राइज ने ले रखे हैं वो जनरली डिस्क्लोज कर दिए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाय वे ऑफ नोट. हालांकि उसमें दैट ए लॉस कि भाई एंटरप्राइज को उसकी वजह से कोई लॉस होगा उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो इज रिमोट, वो बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत तब भी उनको डिस्क्लोज कर दिया जाता है. Provisions for contingencies are not made in respect of general or unspecified business risk, since they do not relate to conditions or situation existing at balance sheet date. वो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी जो होता है वो जनरल या अनस्पेसिफाइड बिजनेस रिस्क के लिए नहीं किया जाता कि भाई हमें पता ही नहीं है कि ये बिजनेस का रिस्क है उसके लिए भी आप कंटीजेंसी का प्रोविजन कर दें, नहीं, क्योंकि वो जो हैं वो किसी कंडीशन या सिचुएशन को जो कि बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है उससे रिलेट नहीं होते हैं. नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कंटीजेंसी गेन, कंटीजेंट गेन्स.
Contingent gains are not recognized in financial statement since their recognition may result in the recognition of revenue which may never be realized. और कंटीजेंट गेन को तो आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है, क्योंकि उनकी रिकॉग्निशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो रेवेन्यू जो कभी रियलाइज्ड ही नहीं होगी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए. However, when the realization of a gain is virtually certain, then such gain is not a contingent and accounting for the gain is appropriate. और वो कहते हैं जब आपको पता ही है कि ये गेन तो होना ही होना है, virtually certain है, तब वो गेन जो है वो कंटीजेंट ही नहीं रहेगा. जब आपको पता है कि ये गेन होना है तो वो कंटीजेंट नहीं है, और जब कंटीजेंट नहीं है तो उसकी अकाउंटिंग करना है वैसे ही अप्रोप्रिएट है. Now, determination of amounts at which contingencies are included in financial statement. अब वो कहते हैं आप उन अमाउंट्स का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे जिसके पे कि वो कंटीजेंसीज जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करनी है. The amounts at which a contingency is stated in financial statements is based on the information which is available at the date on which the financial statements are approved. वो कह रहे हैं जो अमाउंट है कंटीजेंसीज का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस अमाउंट पे लिखी जाएंगी वो बेस्ड होता है वो उस इंफॉर्मेशन पे जो कि अवेलेबल हैं उस डेट पे, जो जिस डेट पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रही है. Event occurring after balance sheet date that indicate that an asset may have been impaired or that a liability may have existed at the balance sheet date are therefore taken into account in identifying contingencies and in determining the amounts at which such contingencies are included in financial statement. तो कह रहे जो इवेंट है बैलेंस शीट डेट के बाद के कि ऐसा हो सकता है कि ये एसेट जो है ये इसको इम्पेयर करना पड़ जाए या कोई लायबिलिटी जो मे हैव एग्जिस्टेड जो कि बैलेंस शीट डेट पर लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको टेकन इनटू अकाउंट किया जाता है इन आइडेंटिफाइंग द कंटीजेंसीज और डिटरमाइन करने के लिए उन अमाउंट्स का जिसपे कि वो कंटीजेंसीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंक्लूड करना है. In some cases, each contingency can be separately identified and the special circumstances of each situation considered in the determination of the amount of the contingency. और कुछ केसेस में हर एक कंटीजेंसी को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना पड़ता है और वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हर एक सिचुएशन के कंसीडर किए जाते हैं अमाउंट्स ऑफ कंटीजेंसी डिटरमाइन करने के लिए. ए सब्सटेंशियल लीगल क्लेम अगेंस्ट द एंटरप्राइज में रिप्रेजेंट सच ए कंटीजेंसी. एक सब्सटेंशियल लीगल क्लेम जो है एंटरप्राइज के अगेंस्ट में जो हुआ है वो भी एक कंटीजेंसी है. अमंग द फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट बाय management in evaluating such a contingency are the progress of the claim at the date on which the financial statements are approved. तो बाकी फैक्टर्स में जो कि कंसीडर करने हैं टेकन इनटू अकाउंट है मैनेजमेंट के लिए वो है कि जो क्लेम जो लीगल क्लेम है उसकी प्रोग्रेस क्या है ऑन द डे एट द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड. The opinions wherever necessary of legal experts or other advisors, the experience of the enterprise in similar cases and the experience of other enterprise in similar situations. तो एक तो उस क्लेम की प्रोग्रेस क्या है, ओपिनियन क्या है उसके बारे में लोगों की, और जहां तक कि अगर कभी जरूरी है तो लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है या अदर एडवाइजर्स की, या सिमिलर केसेस में एंटरप्राइज के एक्सपीरियंस क्या रहे हैं या सिमिलर केस में दूसरे एंटरप्राइज के सिमिलर सिचुएशन में दूसरे एंटरप्राइज के
एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। 7.3, if the uncertainties which created a contingency in respect of an individual transactions are common to a large number of similar transactions, then the amount of contingency need not be individually determined but may be based on the group of similar transactions. वो कह रहे हैं अनसर्टेनिटी जो जिसने की कंटीजेंसी क्रिएट की है वो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस के लिए जो है वो कॉमन है कि एक लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शंस की तरह है, तब वो कंटीजेंसी को जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली डिटरमाइन किया जाए और वो बेस हो सकती है ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शंस के बेस पे। An example of such contingencies may be the estimated uncollectible portion of accounts receivable, और उसका एक एग्जाम्पल है एक estimated uncollectible portion of accounts receivable. Another example of such contingencies may be warranties for the product sold. दूसरा एग्जाम्पल है उन contingencies का जो आपने प्रोडक्ट बेचे उनकी वारंटीज। These costs are usually incurred frequently and experience provides a means by which the amount of liability or loss can be estimated with reasonable precision, although the particular transactions that may result in a liability or a loss are not identified. तो कहते हैं ये कॉस्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली और इनकर होती है और एक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती हैं कि आपको जनरली कितने अमाउंट की लायबिलिटी या लॉस होगा, एस्टिमेटेड लॉस होगा विद रीजनेबल प्रेसिजन, कि भाई आपकी जो रीजनेबल उससे कि भाई आप एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे कितना लायबिलिटी या कितना लॉस जो है वो आपको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। प्रोविजन फॉर दीज कॉस्ट रिजल्ट्स इन देयर रिकॉग्निशन इन द पहली वाली लाइन में कि जनरली जो ये कॉस्ट है वारंटीज वाली वो यूजुअली इनकर होती रहती है फ्रीक्वेंस ऑन डे टू डे बेसिस, और आपका एक्सपीरियंस जो है पास्ट एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करता है कि कितनी अमाउंट की लायबिलिटी या लॉस एस्टिमेट किया जा सकता है विद रीजनेबल प्रिसिजन। बहुत रीजनेबली ये हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो कि ये लायबिलिटी में जो लायबिलिटी क्रिएट कर सकती है या जो लॉस जिससे इनकर होगा वो आइडेंटिफाइड नहीं है। Provision for these costs result in their recognition in the same accounting period in which they own a they related in which the related transactions took place. वो कह रहे हैं इनके लिए प्रोविजन करना उन प्रोविजन फॉर दिस कॉस्ट उसकी वजह से क्या होगा वो उस सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज हो जाएंगी जिसमें वो ट्रांजेक्शंस हुई है। Events occurring after balance sheet date. Events which occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved may indicate the need for adjustment to assets and liabilities as at the balance sheet date or may require disclosure. इवेंट्स जो कि बैलेंस शीट डेट और उस डेट के बीच में होते हैं जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव की जाती है, वो ऐसी ज़रूरत को इंडिकेट कर सकते हैं जो कि जिसकी वजह से कि एसेट्स या लायबिलिटीज़ में कुछ एडजस्टमेंट की जानी चाहिए बैलेंस शीट डेट पे या डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट को भी बता सकते हैं। Adjustment to assets and liabilities are required for events occurring after balance sheet date that provide. Good morning to all. Good morning. Adjustment to assets and liabilities are required for events occurring after balance sheet date that provide additional information materially affecting the determination of amounts relating to conditions existing at the balance sheet date. वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट जो एसेट्स और लायबिलिटीज में करनी है आर रिक्वायर्ड, और वो
किसके लिए करनी है? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जो कि इवेंट्स बैलेंस शीट डेट के बाद हुए हैं, और वो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि मटेरियली इफेक्ट करेगा और उसकी वजह से the determination of amount relating to condition existing at balance sheet date, और बैलेंस शीट डेट पे जो कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी उसकी वजह से वो अमाउंट, सर एक बार फिर से एडजस्टमेंट जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो उन इवेंट्स की वजह से जो बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर हुई हैं, और वो इवेंट्स इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन मटेरियली प्रोवाइड, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जो मटेरियली अफेक्ट करती हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स को रिलेटिंग टू कंडीशंस, उन कंडीशंस की रिलेशंस में जो एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पर। तो बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करने वाली कंडीशंस के बारे में पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट्स, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, की जा सकती है उन इवेंट्स के द्वारा जो कि मटेरियली इफेक्ट करे उन अमाउंट्स को या ऐसी कंडीशंस को जो एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पर, उनको अमाउंट्स को डिटरमाइन करने के लिए। For example, an adjustment may be made for a loss on a trade receivable account which is confirmed by the insolvency of a customer which occur after the balance sheet date. और इसका एग्जांपल है एडजस्टमेंट की जरूरत हो सकती है उस लॉस के लिए जो कि ट्रेड रिसीवेबल में होना है, जो कि कंफर्म हुआ है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए कस्टमर और जो कि वो बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हुई थी। Adjustment to assets and liabilities are not appropriate for events occurring after balance sheet. मैडम ये 4 एग्जांपल को दोबारा पढ़ के क्लियर करना प्लीज। इसमें क्या है कि अगर बाई चांस आपका एक ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट डेट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और जिस दिन बैलेंस शीट अप्रूव हो रही है, कोई मेजर आपका रिसीवेबल खड़ा हुआ है, उस दिन तक वो कस्टमर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा, तो बेसिकली बैलेंस शीट डेट पे तो वो खड़ा हुआ है रिसीवेबल, लेकिन जिस दिन बैलेंस शीट साइन होनी है उस दिन तक आपको पता हो चुका है कि ये तो मेरे को मिलेगा ही नहीं, ये तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो है Adjustments, assets and liabilities are not appropriate for events occurring after the balance sheet date if such events do not relate to conditions existing at the balance sheet date. ऐसी events जो कि balance sheet date के ऊपर conditions जो exist नहीं करती थी, अगर उनकी वजह से कुछ उनके ऊपर अगर कुछ चेंजेस आना है, मतलब दोबारा से पढ़ता हूँ। सर ये बोला सर, जो एडजस्टमेंट्स हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, वो अप्रोप्रिएट नहीं है उन इवेंट्स के लिए जो कि अकर करती हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर वो इवेंट्स उन कंडीशन से रिलेट नहीं करती जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती हैं, तब एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल दिया था। An example is the decline in market value of investments between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved. तो जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी मार्केट वैल्यू अगर जो बैलेंस शीट डेट पर थी और जो बाद में जब तक बैलेंस शीट अप्रूव हो रही है उस दिन में अगर कोई डिक्लाइन हो गया, तो ये एक एग्जांपल है कि वो उसको हमें एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, है ना। Ordinary fluctuations in market values do not normally relate to the conditions of the investment as at the balance sheet date. तो अगर ordinary fluctuation है मार्केट में, वो जो conditions हैं बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट डेट पर, उसको नॉर्मली रिलेट नहीं करती हैं, तो वो ऑर्डिनरी फ्लक्चुएशंस को नहीं करना। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई फ्लक्चुएशंस हैं तब देखेंगे उसको, but reflect circumstances which have occurred in the following period. वो ऐसे circumstances को reflect करती हैं जो कि अगले पीरियड, अगले फाइनेंशियल पीरियड में occur हुई है। Events occurring after the balance sheet date which do not affect the figures stated in the financial
statements would not normally require disclosure in the financial statements, although they may be of such significance that they may require a disclosure in the report of the approving authority to enable users of financial statement to make proper evaluations and decisions. ऐसी इवेंट्स बैलेंस शीट की डेट के बाद होने वाली ऐसी इवेंट्स जो कि फिगर्स जो बैलेंस शीट्स में दी गई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दी गई हैं, उसको अफेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उनको would not normally require disclosure. डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि वो ऐसी सिग्निफिकेंस है, उनकी सिग्निफिकेंस है जिनकी वजह से डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड. वो उसका डिस्क्लोजर जरूर दिया जा सकता है रिपोर्ट में, पर फिगर्स को कोई चेंज करने की जरूरत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिगर्स में कोई चेंज ही नहीं आया, इफेक्ट ही नहीं हुआ उसका. तो वो डिस्क्लोजर रिपोर्ट में इसलिए देना है अप्रूविंग अथॉरिटी के द्वारा, ताकि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूजर्स हैं उनको प्रॉपर इवैल्यूएशन या डिसीजंस करने में हेल्प हो. देयर आर इवेंट्स which although take place after the balance sheet date are sometimes reflected in the financial statements because of statutory requirements or because of their special nature. या तो statutory requirements की वजह से या कोई special nature की वजह से कुछ ऐसी events जो कि balance sheet date के बाद ही होती हैं are sometimes reflected in the financial statement. कभी-कभी वो financial statements में reflect करी जाती है वो. For example, if dividends are declared after the balance sheet date, but before the financial statements are approved for issue, the dividends are not recognized as a liability at the balance sheet date because no obligation exists at that time unless a statute requires otherwise. तो अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल से पहले फॉर इशू ऑफ दिस डिविडेंड, ये डिविडेंड्स रिकॉग्नाइज नहीं किए जा सकते, नहीं करने हैं एज ए लायबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता था बैलेंस शीट डेट पे जब तक कि कोई स्टैट्यूट ना रिक्वायर करे अदरवाइज. स्टैट्यूट अगर कहीं नहीं वो रिकॉग्नाइज करना है और उसे लायबिलिटी क्रिएट करनी है तब तो करना है. सच डिविडेंड्स आर डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स. तो लायबिलिटी तो नहीं क्रिएट करनी, पर उसको नोट्स में डिस्क्लोज करना है. Events occurring after the balance sheet date may indicate that the enterprise ceases to be going concern. ऐसी कोई इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हुई हैं वो इंडिकेट कर सकते हैं कि एंटरप्राइज जो है गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट को सीज कर रहा है. अब वो गोइंग कंसर्न नहीं रहा. A deterioration in operating results and financial position or unusual changes affecting the existence or substratum of the enterprise after the balance sheet date. For example, destruction of a major production plant by a fire after the balance sheet date may indicate a need to consider whether it is proper to use the fundamental accounting assumption of going concern in the preparation of financial statements. तो ऐसी इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद में अकर हुई हो और गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करती हो, तो ऐसा जैसे कोई ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में डिटरेशन हुई हो या फाइनेंशियल पोजीशन में डिटरेशन हुई हो या कोई अनयूजुअल चेंज हुआ हो जिससे की वजह से एग्जिस्टेंस ही अफेक्ट हो गई उस एंटरप्राइज की बैलेंस शीट डेट के बाद, जैसे कि कोई फायर लगी और उसकी वजह से मेजर प्रोडक्शन प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया. ऐसी कोई सिचुएशन में वो इंडिकेट कर सकती है कंसिडर करने के लिए whether it is proper to use the fundamental accounting assumption of going concern. क्या going concern की जो fundamental accounting assumption है उसको हम कंसिडर करें बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए. प्रॉपर है, इट्स प्रॉपर है. डिस्क्लोजर. The disclosure requirement herein referred to apply only in respect of those contingencies or events which affect the financial position to a material extent. तो जो disclosure requirement है
वो उन्हीं कंटिजेंसीज या उन्हीं इवेंट्स जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद occur हुई हैं के लिए है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को materially affect करे. If a contingent loss is not provided for, its nature and an estimate of its financial effect are generally disclosed by way of note unless the possibility of a loss is remote, other than the circumstances mentioned in paragraph 5.5. If a reliable estimate of the financial effect cannot be made, this fact is disclosed. कहते हैं अगर कंटिजेंट लॉस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता तो उसकी नेचर और उसका एस्टिमेट फाइनेंशियल इफेक्ट का जनरली डिस्क्लोज किया जाता है नोट के द्वारा, बाय वे ऑफ नोट, जब तक कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ ए लॉस जो है वो बड़ा रिमोट हो, मतलब ऐसा हो कि पॉसिबिलिटी बड़ी रिमोट हो तब तो छोड़ दो, अदरवाइज वो डिस्क्लोज करना है. और अगर पॉसिबिलिटी रिमोट है तो वो कंटिजेंट क्या रहा, कितना कंटिजेंट रहा, वो डिसाइड करने वाली बात है. अगर कोई रिलायबल एस्टिमेट ही नहीं हम तैयार कर सकते हैं फाइनेंशियल इफेक्ट का, तब इसको फैक्ट को डिस्क्लोज करते हैं. जैसे सर हमारे अगर बाई चांस कोई डिमांड निकली हुई है और हमने उस केस में अपील की हुई है तो हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं. हाँ. तो हमें पता नहीं क्या होगा. हाँ. लेकिन और उसका हमें ये भी नहीं, अमाउंट भी नहीं पता क्या होगा, फाइनल आउटकम क्या होगा उसका, हम उसमें पूरा डिस्क्लोज करते हैं कि भाई ये अपील है, इस साल की है और इस फॉर्म पे पेंडिंग है. When the events occurring after the balance sheet date are disclosed in the report of the approving authority, the information given comprises the nature of the events and an estimates of their financial effects or a statement that such an estimate cannot be made. और जब कुछ इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर होती हैं और डिस्क्लोज की जाती हैं अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा रिपोर्ट में, तो जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो उसमें क्या क्या नेचर ऑफ द इवेंट है, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट का एस्टीमेट है, या एक स्टेटमेंट कि ऐसा एस्टीमेट तैयार नहीं किया जा सकता है. मेन प्रिंसिपल्स, कंटिजेंसीज. The amount of a contingent loss should be provided for by a charge in the statement of profit and loss if it is probable that future events will confirm that after taking into account any relatable probable recovery, an asset has been impaired or a liability has been incurred as at the balance sheet date and a reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made. तो जो कंटिजेंट लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज ए चार्ज प्रोवाइड करना चाहिए अगर वो प्रोबेबल है कि फ्यूचर इवेंट्स ने कंफर्म कर दिया है, उसकी रिलेटेड प्रोबेबल रिकवरी को कंसीडर करते हुए कि कंफर्म हो गया कि एसेट या तो इंपेयर हो चुकी है या कोई लायबिलिटी इनकर हो चुकी है बैलेंस शीट डेट पर, और उसका रीजनेबल एस्टिमेट अमाउंट का रिजल्टिंग इन अ लॉस किया जा सकता है. द एग्जिस्टेंस मतलब अगर कोई लॉस को हम एक एस्टिमेट को रीजनेबली अमाउंट भी उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फ्यूचर इवेंट्स ने कंफर्म भी कर दिया है, उसकी रिलेटेड प्रोबेबल रिकवरी को भी कंसीडर करते हुए कि या तो एसेट इंपेयर हो चुकी है या कोई लायबिलिटी इनकर हो चुकी है बैलेंस शीट डेट पर और रीजनेबल अमाउंट डिटरमाइन हो चुका है उस लॉस का, तब हमें उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज ऑफ करना चाहिए. द एग्जिस्टेंस, और अगर ऐसा नहीं है तो अगर ये प्रोबेबल नहीं है तो 100% चार्ज करना ही है फिर तो, है. मान लो हमारी जून में कोई रिकवरी हो गई रिलेटिंग टू मार्च से, तो वो प्रोबेबल भी नहीं रहा तो उसको तो करना ही पड़ेगा. नहीं वो तो एक्चुअली हो गया ना. हाँ एक्चुअली हो गया, बट पेड वाज लेटर ऑन. नहीं, अगर रिकवरी हो गई तो इंपेयर भी नहीं हुआ ना, वो फिर लॉस तो है ही नहीं ना. मैं कह रही 31 मार्च को तो लॉस ही हो गया ना. नहीं रिकवरी होगी जून में. हाँ तो वो तो प्रोबेबल भी नहीं रहा, वो तो रियल बन गया. रियल लॉस नहीं बना ना. हाँ देखो एग्जांपल के साथ बात करते हैं. मान लो कोई डेटर था, सपोज डेटर हालांकि इसमें नहीं आएगा,
डेटर था 1000 रुपए का, हाँ, ऐसा लगता था शायद ये नहीं मिले, और जून में जाकर रिकवर हो गया 1000 रुपए, हाँ, ठीक है लॉस वो रहा ही तो नहीं, फिर तो लॉस रहा ही नहीं। तो 1000 हाँ। रुपए से स्टेट करेंगे उसे बैलेंस शीट डेट में, उसको लॉस तो बुक ही नहीं करेंगे। नहीं, पेनल्टी लगी 30,000 की हाँ, और हमने जून में पे भी कर दिया, जून में पे भी कर दिया हाँ, पेनल्टी को, तो उस केस में तो कंफर्म हो गया ना, मार्च की पेनल्टी मार्च की थी, वो हमने बाद में पे कर दी, तो हमने कॉन्टेस्ट नहीं करनी, इसलिए रियल लाइबिलिटी होगी वो। पेनल्टी लगी कब? मार्च तक, 31 मार्च तक लग गई थी जो पेनल्टी। 31 मार्च तक पेनल्टी लग गई, वो तो फ्यूचर इवेंट नहीं आया ना, और कंटीजेंट भी नहीं रहा, वो तो हाँ ये आपने बात है। बैलेंस शीट में वैसे ही ले तो हमें लिया होगा। 31 हाँ, मार्च मतलब वो पता ही नहीं। रियल ही हो गया वो तो, ठीक बात। वो आपका मतलब है कि जो मार्च में पेनल्टी लगेगी वो तो काउंट करनी है ना? उसके हाँ, बाद भी अगर लगी है तो भी कर सकते हैं, अगर वो हाँ, रीजनेबली एश्योर्ड है, ठीक, राइट। प्रोबेबिलिटी खत्म है जिसकी। इसमें यह है कि अगर आपका बाई चांस मार्च में कोई केस पेंडिंग था और अप्रैल में उसमें डिमांड क्रिएट हो जाती है, हाँ, तो हम उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं तो फिर उसको एज ऑन 31 मार्च। और अगर वो केस अभी डिसाइड नहीं हुआ, उसमें हमें फिर ये देखना है कि ये जो उसके बाद की अगर कोई इम्पैक्ट आता है, जैसे हियरिंग्स में कुछ उसका स्टैंड एओ का या सीआईटी अपील का या किसी भी अथॉरिटी का कोई स्टैंड ऐसा आ जाता है जिससे हमें लगता है कि नहीं ये तो हम हार ही जाएंगे, और रीजनेबली सर्टेन हो जाता है कि हमारे अगेंस्ट जाएगा, तब हम उसके बाद हम उसको इम्पैक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तब उसे चार्ज कर देना चाहिए प्रॉफिट लॉस से। और अगर नहीं कर सकते हैं, अमाउंट क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, तब उसका एक नोट देना है, नोट तो देना ही है। ठीक। The existence of a contingent loss should be disclosed in the financial statements if either of the condition in paragraph 10 is not met, unless the possibility of a loss is removed. वो कह रहा है जो पैराग्राफ 10 में ये कंडीशंस दी हैं, ये दोनों में से अगर कोई भी मेट नहीं होती, यानी कि कोई फ्यूचर इवेंट की वजह से जो कि उसकी रिलेटेड प्रोबेबल रिकवरी को कंसीडर करने के बाद ये प्रोबेबल हो कि कोई ऐसा टेम्पेयर हो चुकी है या कोई लायबिलिटी इनकर हुई है बैलेंस शीट डेट पर, और उसका रीजनेबल एस्टिमेट जो रिजल्टिंग लॉस है वो किया जा सकता है, ये दोनों अगर कंप्लीट होती है, मेट होती है, तब तो हमें चार्ज ऑफ करना है टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अदरवाइज उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस, कंटीजेंट लॉस, वो डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अनलेस कब तक नहीं करना, जब तक कि वो लॉस की पॉसिबिलिटी बड़ी रिमोट हो। कंटीजेंट गेन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो क्लियर है, ये तो गेन है, इसलिए तो ये तो एक्चुअल रियलाइजेशन बेसिस में लेना होता है। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बस थोड़ा सा ये खत्म कर लेते हैं ना। Assets and liabilities should be adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amounts relating to conditions existing at the balance sheet date, or that indicate that the fundamental accounting assumptions of going concern, that is continuance of existence or substratum of the enterprise, is not appropriate. Assets and liability उन इवेंट्स जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हुई हैं की वजह से एडजस्ट की जानी चाहिए। और क्यों की जानी चाहिए? जो इवेंट्स हैं बैलेंस शीट डेट के बाद जो अकर हो रही हैं, प्रोवाइड करती है एडिशनल एविडेंस टू असिस्ट द एस्टिमेट। तो एडिशनल एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है उन इवेंट्स के द्वारा उस एस्टिमेशन करने के लिए अमाउंट्स में रिलेटिंग टू कंडीशन दैट एग्जिस्ट एट द बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन जो एग्जिस्ट करती थी उनसे रिलेटेड अगर कुछ अमाउंट्स है उनको एस्टिमेट अगर करने में कोई हेल्प मिलती है बैलेंस शीट डेट के बाद की इवेंट्स को जो हुई है उसके हिसाब से, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एडजस्ट करना चाहिए। या कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न अगर इंडिकेट हुई है तो तब भी, or that indicate that the fundamental accounting assumption of going concern is not
appropriate. क्या मीनिंग हुआ? वो कह रहे हैं और अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन जो थी गोइंग कंसर्न की वो अप्रोप्रिएट नहीं है तब भी एसेट्स या लायबिलिटीज को एडजस्ट करना चाहिए। हाँ, जो अच्छा एग्जम्पशन जो थी गोइंग कंसर्न की वो मतलब उसपे कुछ दिक्कत आ गई। नॉट अप्रोप्रिएट का मतलब वही हुआ ना कि जो गोइंग कंसर्न है वो इम्पैक्ट हो रहा है। इम्पैक्ट हो गया, अफेक्टेड है। जैसे कि उन्होंने बताया था कि प्लांट में आग लग गई। Yes. If an enterprise declares dividend to shareholders after the balance sheet date, the enterprise should not recognize those dividends as a liability at the balance sheet date unless a statute requires otherwise. Such dividend should be disclosed in notes. तो dividend declare करते हैं बाद में, तो उसको as a liability नहीं create करना जब तक कि कोई statutory requirement ना हो ऐसा करने की, और इसको notes में disclose करना है। पहले तो हम क्या करते थे, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते थे तो उसे बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड लेके जाते थे, प्रॉफिट लॉस में से भी प्रपोज डिविडेंड घटाते थे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी लेते थे। ये मैंने 8-10-12 साल पहले एक दो बार प्रपोज डिविडेंड किया था। सर ये सर वो है जो आपने बैलेंस शीट डेट तक आपने प्रपोज कर दिया, लेकिन वो कह रहे ये वो है डिविडेंड ही जो बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है। ओके, प्रैक्टिकली तो बाद में ही करते थे पर प्रैक्टिकली तो बाद बैलेंस शीट में दिखाते थे। Disclosure should be made in the report of the approving authority. Disclosure should be made in the report of approving authority of those events occurring after the balance sheet date that represent material changes and commitments affecting the financial position of that enterprise. तो ऐसे जो इवेंट्स हैं बाद बैलेंस शीट डेट के बाद में अकर हुए जो कि मटेरियल चेंज या कमिटमेंट मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स जो कि बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन की को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है, किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करने वाले मटेरियल चेंजेस और कमिटमेंट्स जो शो कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद की इवेंट्स, तो वो डिस्क्लोज किए जाने चाहिए अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। डिस्क्लोजर, if disclosure of contingencies required by paragraph 11 of this standard, the following information should be provided. अगर पैराग्राफ 11 के हिसाब से डिस्क्लोजर कंटिजेंसीज की रिक्वायरमेंट है तो क्या क्या होना चाहिए? द नेचर ऑफ द कंटिजेंसी प्रोवाइड होना चाहिए, द अनसर्टेनिटीज व्हिच मे अफेक्ट द फ्यूचर आउटकम, ऐसी अनसर्टेनिटीज को रिपोर्ट करना है जो कि फ्यूचर आउटकम को अफेक्ट किया कर सकती है, an estimate of the financial effect or a statement that such an estimate cannot be made. फाइनेंशियल इफेक्ट के ऊपर जो भी एस्टिमेट है वो हमें रिपोर्ट करना है या एक स्टेटमेंट की ऐसा फाइनेंशियल एस्टिमेट हम नहीं तैयार कर सकते हैं, ये डिस्क्लोज करना है। 17, if disclosure of events occurring after the balance sheet date, ऊपर contingencies के लिए था, अब events after balance sheet date in the report, if disclosure of event occurring after the balance sheet date in the report of the approving authority is required by paragraph 15 of this standard, the following information should be provided. अगर पैराग्राफ 15 में ये डिसाइड करते हैं कि ये इवेंट्स occurring after the balance sheet date को रिपोर्ट करना है अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा, तब क्या क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ द इवेंट, पहले नेचर ऑफ कंटिजेंसी था, अब नेचर ऑफ इवेंट, द एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट और a statement that such an estimate can not be made. तो या तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट देना है और अगर नहीं दे सकते तो उसकी स्टेटमेंट कि ये एस्टिमेट हम नहीं दिया जा सकता। उसमें कंटिजेंसी में एक अनसर्टेनिटीज व्हिच में अफेक्ट द फ्यूचर आउटकम साथ में देना था, जबकि जो बैलेंस शीट डेट के बाद की इवेंट हो गई ऑकर ही हो गई तब वो अनसर्टेनिटीज का कुछ इश्यू नहीं है। सो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हो गया, इवेंट्स कंटिजेंसी एंड events occurring after the balance sheet date.